General Principles of Fair Trial Introduction. The primary object of criminal procedure is to ensure a fair trial to every person accused of any crime. The notion of a fair criminal trial has close links with the basic and universally accepted human rights. Basically जो primary object है criminal procedure का वो यही है कि ताकि सब लोगों को जो भी accused हैं उन सबको एक fair trial मिले, ठीक है। और fair trial का जो concept है वो closely related है with the concept of human rights, ठीक है। यही ये पैरा बात करता है। नेक्स्ट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट सच एज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948। तो इंडिया इन दोनों चीज़ों का एक सिग्नेटरी है, ठीक है। फर्स्टली इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड Universal Declaration of Human Rights 1948. Now, the above said covenants guarantee to the citizens of the nation signatories to the covenants various rights such as presumption of innocence, etc. अब जो भी ये इन दोनों covenants के signatories हैं ना, उन सारी nations को, उनके citizens को कुछ rights provide किए जाते हैं, ठीक है। such as innocence मतलब presumption of innocence मतलब innocent proven until proven guilty, etc. These salutary features forming part of the international covenants and universal declaration on human rights are deeply rooted in our constitution. अब ये जो features हैं, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में हमने देखे, ये डीपली रूटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम देख सकते हैं इन सबको आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ट्रायल भी है, ठीक है। Now, fair trial is the heart of criminal jurisprudence and, in a way, very important facet of democratic polity that is governed by the rule of law. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फेयर ट्रायल है वो हार्ट ऑफ द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है ताकि रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया जा सके डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायल. The term trial has not been defined in CRPC. It means the judicial process in accordance with law whereby the question of guilt or innocence of the person accused of any offence is determined. तो इतना सा ध्यान रख लो, एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें एक accused person की guilty या innocent determine होता है. Therefore, where a magistrate or court conducts an inquiry for deciding as to the guilt or innocence of any person accused of any offence, such an inquiry is not just an inquiry, but it is termed as a trial. But where the inquiry relates to the matter other than determination of guilt or innocence in respect of any alleged offence, such an inquiry is not a trial but merely an inquiry. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें आप डिटरमाइन कर रहे हो पर्सन गिल्टी है कि इनोसेंट, वो ट्रायल है। और उसके अलावा कोई भी और प्रोसेस है जो भी हो रहा है जिसमें आप है ना एलिजिड ऑफेंस के रिलेशन में गिल्टी या इनोसेंट डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वो इंक्वायरी है मेयरली, उसको ट्रायल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फेयर ट्रायल. तो फेयर ट्रायल ऑब्वियसली वुड मीन अ ट्रायल बिफोर एन इम्पार्शियल जज, अ फेयर प्रोसिक्यूटर एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम. तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी होते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज इम्पार्शियल जज, फेयर प्रोसिक्यूटर एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम, ठीक है। फेयर ट्रायल मीन्स अ ट्रायल इन विच बायस और प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट द अक्यूज्ड, द witnesses or the cause which is being tried is eliminated. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फेयर ट्रायल वो ट्रायल है जहाँ पे कोई बायस नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है अगेंस्ट द अक्यूज्ड या फिर विटनेस, ठीक है, और द कॉज जिसके अगेंस्ट ये ट्रायल हो रहा है, ठीक है। नाउ दैट फेयर ट्रायल, the principle of fair trial is reflected in numerous rules and practices. It is a constant ongoing development process, continually adapted to new changing circumstances and exigencies of the situations. Peculiar at times and related to the nature of crime, persons involved directly or operating behind, social impact and societal needs, and even so many powerful balancing factors which may come in the way of administration of criminal justice system. तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो प्रिंसिपल है ना ये फेयर ट्रायल का, ये बहुत सारे रूल्स और प्रैक्टिसेस में दिखता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है. अब ये ना एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, ये एक ऑनगोइंग फैक्टर है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, ये कंटिन्यूअली डेवलप होता रहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस या फिर न्यू डेवलपिंग सिचुएशंस. कई बार पैक्यूलर हो जाता है एट टाइम्स, ठीक है. वो डिफरेंट कैसे हो जाता है, पैक्यूलर हो जाता है रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द क्राइम या फिर पर्सन जो कि इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सोशल इम्पैक्ट क्या रहा उस क्राइम का, ऑफेंस का, या फिर सोसाइटी नीड्स क्या है, कोई नया लॉ चाहिए क्या. तो ऐसे करके बहुत सारे पावरफुल बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं विच में कम इन द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ criminal justice system, ठीक है. In a criminal case, the fate of proceedings cannot always be left entirely in the hands of the parties. Crime being public wrong and breach
and violation of public rights and duties which affects to the whole community as a community and is harmful to the society in general. The courts have always been considered to have an overriding duty to maintain public confidence in the administration of justice, often referred to as duty to vindicate or uphold the majesty of law. अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि एक क्रिमिनल केस में जो फेट ऑफ द प्रोसीडिंग्स होता है वो लेफ्ट एंटायरली मतलब पूरा का पूरा सिर्फ पार्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता. अगर उस ऑफेंस में कोई पब्लिक रॉन्ग हुआ है, पब्लिक के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का ब्रीच हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, तो उस केस में जिस केस में कम्युनिटी एज अ होल हार्म हुई है, ठीक है, सोसाइटी इन जनरल को अफेक्ट हुआ है, तो उस केस में कोर्ट्स क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. और यहाँ पे कोर्ट की एक ओवरराइडिंग ड्यूटी होती है कि वो क्या करेगा, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है ना इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो बरकरार रखने के लिए वो उसकी एक ड्यूटी है. ठीक है, तो ये एक जो ड्यूटी है इसको बोल सकते हो ड्यूटी टू विंडिकेट और अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ. ठीक है, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैव ऑलवेज बीन व्यूड एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्टेगनेंट प्रोसेस नहीं है, नॉट कन्फाइंड टू डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर केस. एक पर्टिकुलर केस से नहीं होता, उसको बस चलते जाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. प्रोटेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ लॉ इन द फ्यूचर एज इन द केस बिफोर इट. जैसे पहले आपने जस्टिस को बचाया है, एडमिनिस्टर किया है, वैसे आपको फ्यूचर में भी करना है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट हैज़ टू बी अनमिस्टेकेबली अंडरस्टूड दैट अ ट्रायल which is primarily aimed to at ascertaining the truth has to be fair to all concerned. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि बिना किसी गलती के बस ये समझ लो कि एक ट्रायल हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि आपका मकसद है टू असर्टेन द ट्रूथ. ठीक है, तभी वो फेयर ट्रायल बोला जाएगा. देयर कैन बी नो एनालिटिकल ऑल कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन टू द ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अ फेयर ट्रायल. ठीक है, कोई एनालिटिकल या कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जो कि बता सके कि फेयर ट्रायल क्या होता है. एंड इट मे हैव टू बी डिटरमाइंड इन सीमिंगली इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ एक्चुअल सिचुएशंस with the ultimate object in mind, viz. whether something has that was done or said either before or at the trial deprive the quality of fairness to the degree with where a miscarriage of justice has resulted. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंपल बात यहाँ पे यही बोली गई है कि कोई डेफिनेशन नहीं है एग्जॉस्टिव या फिर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है जिससे पता चल सके कि क्या होता है फेयर ट्रायल. लेकिन फेयर ट्रायल को एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होना चाहिए. अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे क्वालिटी ऑफ फेयरनेस नहीं अफेक्ट हो जाए या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए रिजल्ट. ठीक है, इट विल नॉट बी करेक्ट टू से दैट इट इज़ ओनली द अक्यूज हु मस्ट बी फेयरली डेल्ट विथ. ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप इसमें कि सिर्फ अक्यूज को ढंग से फेयरली डील करो. ठीक है, दैट वुड बी टर्निंग अ नैल्सन्स आई on the needs of the society at large and the victims on their family members and relatives. ठीक है, now each one has an inbuilt right to be dealt with fairly in a criminal trial. अब आप इतना सा ध्यान रख लो इसमें कि जब आप क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि अक्यूज के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए. नहीं, जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, कंसर्न पार्टीज ऑफ द केस, उन सब के साथ आपको फेयरली डील करना है इन अ क्रिमिनल ट्रायल. ठीक है, इफ़ द विलिंगनेस गेट थ्रेटेंड or are forced to give false evidence. अब यहाँ पे if the witnesses get threatened or forced to give false evidence, that would also not be resulting in a fair trial. The failure to hear material witnesses is certainly denial of a fair trial. तो आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ले लो कि आप विटनेस को थ्रेट इंड्यूस कर दिया है या फिर कोई फोर्स कहा है कि फॉल्स एविडेंस दो या मत दो. ठीक है, कुछ भी मत कहो. ठीक है, तो वहाँ पे भी फेयर ट्रायल अफेक्ट हो रहा है, फेयर ट्रायल रिजल्ट नहीं हो रहा है. उसके अलावा जहाँ पे आपने कोई मटीरियल जो एविडेंसेस थे वो लिए ही नहीं है या फिर फेलियर कर जाते हो आपकी, आपने सुना ही नहीं किसी मटेरियल विटनेस को, तो वहाँ पे भी आपने क्या किया है, आप डिनाई कर रहे हो फेयर ट्रायल को. द प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, अ ट्रू एंड फेयर ट्रायल is sine qua non of Article 21 of the Constitution, which declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. अब यहाँ पे बोला गया है ट्रू और फेयर ट्रायल क्या है, साइन क्वा नॉन, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है. वो डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द एस्टैब्लिश प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उसके अलावा अपनी लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं होना चाहिए. फर्स्ट इज एडवाइजरी ट्रायल सिस्टम. ठीक है, सॉरी, एडवर्सरी ट्रायल सिस्टम. इन एडवर्सरी सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोसिक्यूशन विद द जज एक्टिंग एज अ न्यूट्रल रेफरी. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एडवर्सरी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो
कि सारे एविडेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की ड्यूटी होती है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और जो जज होता है वो एक न्यूट्रल रेफरी होता है. दिस सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ट्रायल अज्यूम्स दैट द स्टेट on one hand or by using investigating agencies and government counsels will prosecute the wrongdoer, who on the other hand will take the recourse to best counsel to challenge and counter the evidence of the prosecution. ये बेसिकली वही है जो एक्चुअली हो रहा है, बस उसको एक अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है. सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ट्रायल में आप स्टेट जो होता है वो एक पार्टी होता है, ठीक है. ऑन दी वन हैंड वो यूज़ करता है अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या गवर्नमेंट काउंसिल्स जो कि प्रोसिक्यूट करेंगे रॉन्ग डूअर को, और दूसरे हाथ पे ऑन दी अदर हैंड जो रॉन्ग डूअर होगा वो क्या करेगा, वो रिकोर्स करेगा, अपॉइंट करेगा बेस्ट काउंसिल जो चैलेंज करेगा और काउंटर करेगा उन एविडेंस को जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट इज ट्रायल बिफोर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट जजेस. ठीक है. द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल कंडीशन ऑफ अ फेयर ट्रायल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट जजेस हो. ठीक है. जजेस तो बिल्कुल पार्शियल नहीं होने चाहिए. इन दिस रिस्पेक्ट द क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस. अब इसी रिगार्ड्स में कि जजेस के जो केस है वो इम्पार्शियल रहे, कॉम्पिटेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो इस रिगार्ड्स में CRPC में फॉलोइंग प्रोविजंस है. फर्स्टली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. सिर्फ इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 ही है इसके अंदर. ठीक है. एक तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट्स टू बी ओपन एंड जज और मजिस्ट्रेट नॉट टू बी पर्सनली इंटरेस्टेड इन द केस. ठीक है. The very first is, in order to ensure independent functioning of the judiciary in criminal matters, the court has brought about separation of the judiciary from the executive by requiring the appointment of judicial magistrate as district from executive magistrate and bringing them from all practical purposes under the direct supervision and control of the High Court in each state. Because of the separation, no judge or judicial magistrate would be in any way connected with the prosecution, nor would he be in direct administrative subordination to one connected with the prosecution. तो मतलब prosecution और judge का कोई relation ना हो, ये ही सबसे important है. ठीक है. अब यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको है ना एक क्रिमिनल मैटर के अंदर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है. ठीक है. तो इस कोड के अंदर ये जो प्रिंसिपल है सेपरेशन है का कि सेपरेट रहेगी जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है. एंड ब्रिंगिंग देम, अब उन सबको कहाँ से अपॉइंट होता है, फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस अंडर डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट. हाई कोर्ट अपॉइंट करता है इन ईच स्टेट सारे मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को. ठीक है. तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच द सेपरेशन नो जज एंड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वुड बी इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रोसिक्यूशन. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में यही है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट इन ईच स्टेट अपॉइंट करती है अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को. ठीक है. प्रैक्टिकल पर्पसेस से लाती है तो उनका कोई कनेक्शन नहीं होता विद द प्रोसिक्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्ट टू बी ओपन. पब्लिक ट्रायल इन ओपन कोर्ट acts as a check against judicial caprice or vagaries and serves as a powerful instrument for creating confidence of public in fairness, objectivity, impartiality and of administration of public criminal justice. सबसे अच्छी बात यही है कि आप जाके बैठ सकते हो, देख सकते हो कोर्ट केसेस में. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस रहता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इससे क्या होता है, चेक अगेंस्ट दी जुडिशियल कैपराइज. ठीक है. पब्लिक ट्रायल मतलब पब्लिक के अंदर ट्रायल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओपन कोर्ट्स की वजह से चेक रहता है अगेंस्ट दी जस्टिस कैपराइज और वेगरीज. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. ठीक है. और ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर क्रिएटिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी. ठीक है. on the administration of criminal justice. Section 327 of CRPC provides that the place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offence shall be deemed to be an open court. जहाँ पे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो एक ओपन कोर्ट मानी जाएगी, टू विच द पब्लिक जनरली में हैव एक्सेस. ठीक है. सिंपल. और ये है ना, अब BNSS का 366 है, कोर्ट्स टू बी ओपन. ठीक है. ना इसके बाद हम बात करते हैं केस की, नरेश सिद्धार्थ मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये है 1967 का केस. इसमें जो एपिक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि राइट टू ओपन ट्रायल मस्ट नॉट बी डिनाइड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट है जज और मजिस्ट्रेट नॉट टू बी पर्सनली इंटरेस्टेड इन द केस. वेरी वही बात है, नीमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा. नीमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा. No man out to be a judge of his own, in his own case. The essence of the maxim has been incorporated from section 479 of the. और BNSS में ये 479 है,
section 525 that deals with cases in which judge or magistrate is personally interested. ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैगजीन है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि कोई अपने जज का केस नहीं, अपने केस का जज नहीं हो सकता, और ये मैगजीन, ठीक है, ये इनकॉपरेटिव इसलिए हुई है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, नो जज और मजिस्ट्रेट शेल ट्राई और कमिट फॉर एनी ट्रायल एनी केस और to which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate should hear an appeal from any judgment or order passed on made by himself। मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपने केस के अंदर आप कोई जजमेंट नहीं दोगे। ठीक है, जिस केस में आप खुद इंटरेस्टेड पार्टी हो, जिस केस के आप खुद पार्टी हो, जिससे आपका कोई भी रिलेशन है, आप उस केस को नहीं सुनोगे। यू जज और मजिस्ट्रेट शेल नॉट हेयर दैट। ओके, एंड एनी अपील और जजमेंट जो भी पास हुआ है, ठीक है, वो खुद से नहीं करना है। ठीक है, नाउ द ऑनरेबल एपिक्स कोर्ट, एक केस था देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। तो इस केस में 2002 का केस है, जिसमें ऑब्जर्व किया था कि जस्टिस कैन नॉट बी मेड स्टेराइल on the plea that it is better to let 100 guilty escape than punish an innocent. Letting the guilty escape is not doing justice according to law। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे इस केस में ये बोला गया देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स केस में कि जस्टिस कैन नॉट बी मेड अ स्टेराइल। मतलब जस्टिस सिर्फ इसलिए भी नहीं बोल सकते कि 100 है ना गिल्टी को ना छोड़ दो क्योंकि इससे ना एक इनोसेंट पनिश हो रहा है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को आप ऐसे एक उससे नहीं कर सकते कि ना 100 गिल्टी को एक्सकेप कर जाने दो। ठीक है, इस ये बेटर रहेगा इससे कि किसी इनोसेंट को पनिश कर दो। गिल्टी को छोड़ देना भी यही है कि आपने जस्टिस वो नहीं किया है, इस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट केस था ज़ाहिरा हबीबुल्ला शेख एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2006 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इफ़ अ क्रिमिनल कोर्ट इज़ टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट in dispensing justice, the presiding judge must cease to have sorry एक बार पढ़ते हैं शुरू से इसको। तो ये ज़ाहिरा हबीबुल्ला शेख एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2006 का केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इफ़ अ क्रिमिनल कोर्ट इज़ टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस, अगर क्रिमिनल कोर्ट को एक अच्छा तरीके से डिस्पेंस करना है जस्टिस, तो वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग जज होगा ना, ही मस्ट सीज टू बी अ स्पेक्टेटर एंड अ मेयर रिकॉर्डिंग मशीन बाय बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, मेयरली एक स्पेक्टेटर नहीं बनना है, उसको रिकॉर्डिंग मशीन नहीं बनना है, उसको एक पार्टिसिपेंट बनना है इन द ट्रायल। ठीक है, ताकि और वो कैसे करेगा, बाय इन्वेंसिंग इंटेलिजेंस एक्टिव इंटरेस्ट एंड एलिसिट ऑल रिलेटिव मटीरियल्स नेसेसरी फॉर रिसर्चिंग टू द रीचिंग टू द करेक्ट इंक्लूजन। तो बेसिकली उसको मशीन नहीं बनना है, मेरली स्पेक्टेटर नहीं बनना है। जो जज है प्रिसाइडिंग जज, उसको अपनी इंटेलिजेंस लगानी है, अपना एक्टिव इंटरेस्ट लगाना है, और सारे रेलेवेंट मटीरियल्स जो नेसेसरी हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए रीच करना है टू द करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ द एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, मतलब सच तक पहुंचने के लिए, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए विद फेयरनेस एंड इम्पार्शली बोथ पार्टीज एंड टू द कम्युनिटी इट सर्व्स। ठीक है, सबको। अब फेयरनेस और जस्टिस किसको सर्व करोगे आप, ऑब्वियसली सबको, पार्टीज़ को भी और कम्युनिटी एज इट सर्व्स। ठीक है, तो कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल जस्टिस court cannot turn a blind eye to vexatious or oppressive conduct that has occurred in relation to the proceedings. Even in fair trial is still possible except even if a fair trial is still possible, except at the risk of undermining the fair name and standing of the judges as impartial and independent adjudicators। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी कोर्ट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व है ना, वो एक अंधी नहीं बन सकते, वो ऐसा नहीं, आंखें नहीं बंद कर सकते, ब्लाइंड आई नहीं रख सकते टुवर्ड्स दी वेक्सेशियस और ऑपरेसिव कंडक्ट जो भी हुए हैं इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब फेयर ट्रायल के लिए पॉसिबल करने के लिए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इवन इफ़ अ फेयर ट्रायल इज स्टिल पॉसिबल एक्सेप्ट, कोई गलत चीज़ हो भी गई है तो भी फेयर ट्रायल पॉसिबल है, एक्सेप्ट एट द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग द फेयर नेम एंड स्टैंडिंग ऑफ द जजेस एज इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट एजुकेटर्स। मतलब बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे कि आपको किसी का नाम नहीं खराब करना है और फेयर ट्रायल में इंश्योर करना है, यही तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एवरी क्रिमिनल ट्रायल बिगिंस विद द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ द अक्यूज। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यही चीज़ बोली गई है कि क्रिमिनल ट्रायल बिगिन होता है तो आप ये नहीं मान के चलते कि वो गिल्टी है, आप मान के चलते कि वो इनोसेंट है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गिल्ट
of the accused beyond all reasonable doubt is upon the prosecution, and unless it relieves itself of that burden, the court cannot record a finding of the guilt or of the accused. तो अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो क्या करेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगा कि ये पर्सन जो अक्यूज है ये गिल्टी है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो कोर्ट क्या करेगी, रिकॉर्ड नहीं करेगी इस पर्सन को गिल्टी, ठीक है। दिस प्रिजम्पशन इज सीन टू फ्लो from the Latin legal principle, that is incumbent probatio qui dicit, मतलब incumbent probatio qui dicit, non qui legat, sorry, non qui negat, that is the burden of proof rests on who asserts, not on who denies. अब यहाँ पे ये बस ये मैक्सिम है जिसका मतलब ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो उसके ऊपर है जो असर्ट करता है, नॉट ऑन द पर्सन जो मना कर रहा है कि मैंने नहीं किया। अगर तुम बोल रहे हो कि उसने किया है तो तुम प्रूफ करो कि उसने किया है। तो ये एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश एंड अदर्स 2011 का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस हिज गिल्ट इज प्रूव्ड। जब तक कोई गिल्टी नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने यही वो किया कि जब तक आपने इसको गिल्टी प्रूव नहीं किया वो इनोसेंट ही प्रिज्यूम किया जाएगा। द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ इज अ ह्यूमन राइट सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक ह्यूमन राइट है एक्सेप्ट फॉर द जहाँ पे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस लग जाते हैं। The said principles from the basis forms the basis of the criminal jurisprudence in India, और यही principle basis form करता है criminal jurisprudence in India. Now point number 4 is protection against ex post fact law. An ex post fact law is a law which imposes penalty retrospectively, that is अब retrospectively मतलब आज लाया बनाया कल जो जिन्होंने कल गुनाह किया था उनको मतलब retrospectively apply नहीं होगा, ठीक है। On acts done and increases the penalty of for such acts, ठीक है। कोई एक्ट किया था जिसकी सज़ा पहले 10 साल थी, अब 12 कर दिए चेंज करके, तो अब पुराने वाले जो गिल्टी और जो लोग हैं उनकी 12 नहीं की जाएगी। एक्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ लिमिटेशन ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑर्डिनरीली, मतलब अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो एक लिमिटेशन लगाता है ऑन द पावर मेकिंग लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, कि लेजिस्लेचर जो है वो प्रोस्पेक्टिव तरीके से ही लॉज बना सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरीली क्या कर सकता है लेजिस्लेचर, और प्रोस्पेक्टिव तरीके से बना सकता है लॉस एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव, बट जो क्लॉज 1 है ना ऑफ आर्टिकल 20 वो प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉस नहीं बना सकता है। ऑर्डिनरीली लेजिस्लेचर दोनों तरीके से बना सकता है, प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉस नहीं बना सकता है क्रिमिनल लॉस। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्टी, ये बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ठीक है। तो अब इसमें भी एक मैक्सिम है कि autre foas acquit and autre foas convict states that if a person is tried and acquitted or convicted of an offense, he cannot be tried against for the same offense or the same facts of any other offense. बेसिकली यही बात है कि एक पर्सन को दोबारा वैक्स नहीं कर सकते सेम गुनाह के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि एक पर्सन जो ट्राई हो चुका है और एक्विट कर दिया गया है या कन्विक्ट हो चुका है फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, तो वो अब सेम चीज़ के लिए दोबारा ट्राई नहीं हो सकता, ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए सेम फैक्ट्स के लिए, ठीक है, किसी दूसरे पे हो सकता है। Now Article 20 Clause 2 of the Indian Constitution says that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. This clause embodies the concept वो ये nemo debet vis vixari, which means that no man should be put twice in peril for the same offence. If he is prosecuted again for the same offence for which he has already been prosecuted, he can take complete defense of his former acquittal or conviction. अगर उसको वापस यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको सेम ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलती है दोबारा, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है ऑफ हिज फॉर्मर एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 300 क्लॉज 1 ऑफ CRPC ऑल्सो प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी। तो अब सेक्शन 300 ये सेक्शन अब 331 ऑफ CRP 331 ऑफ BNSS है, ठीक है, डबल जियोपार्डी को जो प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट इज 6 प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 of subsection 3 of Indian Constitution provides that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस बने, ठीक है, या प्रोवाइड करे कुछ, ठीक है। तो टू अट्रैक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 द इट मस्ट बी शोन दैट द accused was compelled to make the statement likely to be incriminative of himself. अब यहाँ पे बोलना शो करना पड़ेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को की प्रोटेक्शन लेने के लिए कि जो अक्यूज था उसको कंपेल किया गया, ज़बरदस्ती बोला गया कि वो स्टेटमेंट्स दे खुद को इनक्रिमिनेट करने के लिए खुद के अगेंस्ट, ठीक है। तो बट वेयर द अक्यूज मेक्स अ कन्फेशन विदाउट एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस ऑन आर्टिकल 20
क्लॉज 3 डज नॉट अप्लाई। तो अगर खुद से दिया है, उसने कन्फेस करा है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, थ्रेट नहीं था, प्रॉमिस नहीं था, तो वहाँ पे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। अदरवाइज आप कर सकते हो अगर कंपेल किया गया था आपको खुद को इनक्रिमिनेट करने के लिए, कोई एविडेंस देने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए। केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस था, जिसमें क्या ऑनरेबल एपिक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, बीप टेस्ट आर टेस्टिमोनियल कंपल्शंस एंड आर प्रोहिबिटेड इन द आर्टिकल are prohibited by Article 20 Clause 3 of the Indian Constitution. It was further held that the lie detector test can be done only with the consent of the accused in the presence of his lawyer, and judicial magistrate should record the consent of the accused. अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, जिसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग जो टेस्ट है, ये टेस्टिमोनियल कंपल्शंस है, ठीक है, और ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड है बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो मतलब ये वाले जो टेस्ट है आप ले सकते हो, ये प्रोटेक्ट नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल 20 जो क्लॉज 3 है, ठीक है। इसके अलावा ये बोला गया कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात करते हैं वो अक्यूज़ड के प्रेजेंस, मतलब अक्यूज़ड के कंसेंट के साथ होगा, उसके लॉयर की प्रेजेंस में होगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो अक्यूज़ड की कंसेंट को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड करेगा। 7th पॉइंट इज अक्यूज्ड कैन एंगेज काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। सेक्शन 303 ऑफ CRPC बात करता है कि एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस कोर्ट मे ऑफ राइट टू बी डिफेंडेड बाय प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। 340 है अब ये BNSS का, ठीक है, जो ये बात बताता है कि एक अक्यूज पर्सन के पास जो भी गिल्टी है, जो भी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, वो क्या कर सकता है बिफोर अ क्रिमिनल केस, वो क्या कर सकता है, वो अपनी पसंद का कोई प्लीडर ऑफ हिज चॉइस ले सकता है जो उसको डिफेंड करेगा। नेक्स्ट इज विक्टिम कैन एंगेज काउंसिल ऑफ हिज चॉइस। तो प्रोविजो टू सेक्शन 24 क्लॉज 8 ऑफ CRPC states that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist his prosecution. सेक्शन 18 ऑफ BNSS बात करता है इस चीज़ की कि एक परमिशन होती है विक्टिम के पास टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट हिज प्रोसिक्यूशन, ठीक है। सेक्शन 301 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट in any court any private person can engage a counsel of his choice and make such counsel to assist a public prosecutor and such pleader and submit written arguments with the permission of the court after evidence is closed in the case. तो सबसे पहले तो सेक्शन 301 ऑफ CRPC BNSS में कहा, सेक्शन 338 की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब BNSS का सेक्शन 338 है, सॉरी, और ये जो सेक्शन 301 ऑफ CRPC है, ये प्रोवाइड करता है कि एनी प्राइवेट पर्सन कैन एंगेज अ काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, जो कि क्या करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एंड अ प्लीडर कैन सबमिट रिटन रिपोर्ट्स, ठीक है, और एक प्लीडर जो रिटन रिपोर्ट सबमिट करेगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज्ड इन द केस। नेक्स्ट इज लोकेश सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ UP इन दिस क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर ये है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द प्रोविजो सेक्शन 24 क्लॉज 8 subsection 8 of CRPC, if the court permits the victim to engage an advocate of his choice, the court thereafter can not deprive the advocate to address the court in addition to his right to life in the written argument as contained in section 301 after closure of evidence. Section 302 of CRPC allows the victim to conduct prosecution personally or by a pleader before any magistrate with the permission of the court. तो इस पूरे सेक्शन जो पॉइंट 8 है, इसका यही मतलब है कि कुछ सेक्शंस हैं जो BNSS में और CRPC में मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। ये केस है लोकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP। अब इसमें बेसिक चीज़ यही है कि अपनी पसंद का जो विक्टिम जो है वो अपनी पसंद का काउंसिल चूज़ कर सकता है जो कि उसको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है, एज एन एडवोकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो केस है इसके अंदर बता रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया है, इंसर्ट किया प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 क्लॉज 8 ऑफ CRPC, जिसमें कोर्ट ने परमिट कर दिया है कि विक्टिम के पास क्या है, एक राइट है कि वो एंगेज कर सकता है एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, और यहाँ पे कोर्ट आफ्टर उसको, मतलब कोर्ट जो है वो बाद में उसको डिप्राइव नहीं कर सकता कि दैट द एडवोकेट टू एड्रेस द कोर्ट इन एडिशन टू द राइट टू फाइल द रिटन आर्ग्यूमेंट एज कंटेन इन द आफ्टर क्लोजर ऑफ एविडेंस। तो मतलब बाद में कोर्ट है उसको मना नहीं कर सकता किसी भी रूप में अंडर आर्टिकल जो सेक्शन 301 ऑफ CRPC है उसके अंदर आफ्टर क्लोजर ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज राइट टू फ्री लीगल एड। कंसीडरिंग दैट most of the accused persons in India are uneducated and poor and are often unable to engage lawyers of the defense,
ठीक है। अब ऑब्वियसली इंडिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन जो होते हैं अनएडुकेटेड होते हैं, पुअर होते हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एंगेज कर सके लॉयर्स फॉर देयर डिफेंस। तो यहाँ पे बहुत नेसेसरी है कि इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर अरेंजमेंट करवाए जाए उस चीज़ के, कि ऐसे गरीब और अनएडुकेटेड लोगों को लीगल जो सर्विसेज हैं वो फ्री में प्रोवाइड की जाए, ठीक है, उनको अवेलेबल हो। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटर आलिया प्रोवाइड्स दैट no person who is arrested shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसके पास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिसके पास है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप ये राइट, सबको मिलेगा ये राइट कि उनको है ना कंसल्ट करने को मिलेगा एंड उनको डिफेंड करने करा जाएगा बाय लीगल प्रैक्टिशनर जो भी वो चीज़ करते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो क्या करे, लीगल सिस्टम जो है वो प्रमोट करे जस्टिस को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड शेल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और उसके चलते आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, ताकि सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी अदर वे कैसे भी कर सकते हो आप, वो कोई सूटेबल लेजिस्लेशन कर बनाकर या फिर कोई स्कीम्स बनाकर या किसी भी अदर वे में टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस एंड आर नॉट डिप्राइव टू एनी सिटीजन, ताकि कोई भी सिटीजन डिप्राइव नहीं हो, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इफ द राइट टू काउंसिल इज एसेंशियल ऑफ, अब ये जो राइट है, राइट टू काउंसिल, ये एक एसेंशियल राइट है, ये एक एसेंशियल है फेयर ट्रायल के लिए। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू सी दैट द अक्यूज्ड हैज़ द नेसेसरी मीन्स टू एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। ठीक है, अब ये नेसेसरी है कि जो अक्यूज्ड है उसके पास नेसेसरी मीन्स होने चाहिए ताकि वो एंगेज कर सके एक लॉयर को फॉर द डिफेंस। द कोड हैज़ देयरफॉर मेड अ प्रोविजन टू प्रोवाइड द अ लॉयर टू द indignant accused person in a trial before the court of session। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने प्रोवाइड कर रखा है, एक प्रोविज़न बना रखा है कि एक लॉयर मिलेगा इंडिजेंट एक्यूज्ड पर्सन को जब भी उसका ट्रायल होगा बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। द कोड ऑल्सो एनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द राइट टू एनी क्लास ऑफ ट्रायल बिफोर द अदर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, और ये कोर्ट ऑफ सेशंस के अलावा हर अदर केस पे भी होगा एप्लीकेबल। Section 304 Clause 1 of CRPC provides that wherein a trial before the Court of Sessions the accused is not represented by a pleader, and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage the pleader, the court shall assign the pleader to the defense of the expense of the state। अब यहाँ पे सिंपल चीज़ बोली गई है सेक्शन 304 Clause 1 ऑफ CRPC में कि जहाँ पे भी ट्रायल हो रहा है किसी कोर्ट ऑफ सेशन में और जो अक्यूज़ड है उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, प्रॉपर एक प्लीडर, ठीक है, और ये अपेयर होता है कोर्ट को कि वो इसीलिए नहीं है अक्यूज़ड के पास क्योंकि अक्यूज़ड के पास कोई प्रॉपर सफिशिएंट मींस नहीं है, ठीक है, जिससे वो एंगेज कर सके एक प्लीडर को। तो यहाँ पे कोर्ट खुद से है ना स्टेट के एक्सपेंस पे एक डिफेंस प्लीडर असाइन करेगा उस अक्यूज़ड पर्सन को। ठीक है, सेक्शन 304 का क्लॉज 3 जो बात करता है सीआरपीसी का कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट as from such date as may be specified in the notification the provision of subsection 1 and 2 shall apply in relation to any class of trials before the courts as the state may as they apply in their relation to the trials before the courts of session। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो सेक्शन 304 का सब सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन से डायरेक्ट कर देगी कि कब से, ठीक है, ये प्रोविजन सब सेक्शन 1 और 2 के अप्लाई करेंगे इन रिलेशन टू एनी कोर्ट ऑफ मतलब एनी क्लास ऑफ ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट्स इन एनी स्टेट दैट दे अप्लाई टू रिलेशन टू द ट्रायल्स ऑफ बिफोर द कोर्ट्स ऑफ ट्रायल। अभी का केस है हुसैनरा खातून 4 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980 का केस है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आफ्टर रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव कंटेन इन आर्टिकल 39A regarding equal justice and free legal aid, and also approvingly referring to the creative interpretation of Article 21 of the Constitution as propounded in its earlier decision in the Maneka Gandhi versus Union of India 1978, that has explicitly observed as follows: the right of free legal services is therefore clearly an essential ingredient of reasonable and fair and just procedure for a person accused of an offence, and it must be held implicit in the guarantee of Article 21. This is a constitutional right of every accused person who is unable to engage a lawyer and secure legal services on account of reasons of such as poverty, indigence, or incondo situation, and the state is under a mandate to provide a lawyer to the accused person if the circumstances of the case and the needs of the justice so required, provided the course of the accused person does not object to the provision of such lawyer। सिंपली यही बात है कि आर्टिकल 39A जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आर्टिकल 39A जो है वो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, अप्रूविंगली रेफर करता है, और इसके साथ जो अप्रूव करता है इस चीज़ को सपोर्ट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जो कि बताया गया था मेनका गांधी से यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में। अब यहाँ पे बोला गया था कि लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल सर्विसेज का जो राइट है ना, ये क्लियरली एक असेंशियल है, ठीक है, ताकि हम फेयर एंड जस्ट जो रीजनेबल जस्टिस मतलब ट्रायल्स क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो ढंग से कर पाए, ठीक है, जिससे हम गारंटी कर पाए इस चीज़ की, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी अक्यूज पर्सन, जो भी एंगेज नहीं कर सकता एक लॉयर को, सिक्योर नहीं कर सकता लीगल सर्विसेज की, उन सब के लिए। अब किस बेसिस पे वो नहीं कर सकते एंगेज लॉयर को, या किस बेसिस पे वो लीगल सर्विसेज सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो गरीब है, पुअर है, इंडिजेंस है, इनक्वेंडो सिचुएशन में है, कुछ भी गलत सिचुएशन है, तो वहाँ पे स्टेट क्या करेगा, स्टेट के पास एक मैंडेट है स्टेट के ऊपर कि वो प्रोवाइड करेगा एक लॉयर टू द अक्यूज पर्सन इन सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि हम जस्टिस को सर्व कर पाएँ, ठीक है, ठीक है। एंड द अक्यूज पर्सन डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच लॉयर, ठीक है, और यहाँ पे जो अक्यूज पर्सन है वो अपोज नहीं करना चाहिए इसे प्रोविजन ऑफ द सच लॉयर, ठीक है। Now, it has now been laid down by the Honorable Supreme Court that the trial court is under an obligation to inform the accused that if he is unable to engage a lawyer on account of poverty, he is entitled to opt in. अब ये क्या है, यहाँ पे सिंपल एक ये चीज़ बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि यहाँ पे ऑब्लिगेशन है एक ट्रायल कोर्ट की कि वो क्या करेगा, ट्रायल कोर्ट को बताना है कि अगर कोई पर्सन गरीब है, गरीबी की वजह से वो एंगेज नहीं कर पा रहा लॉयर को, तो उसको एंटाइटल, उसको बताना है उस पर्सन, अक्यूज पर्सन को, ट्रायल कोर्ट को, कि आप एंटाइटल्ड हो, कि आप ऑब्टेन कर सकते हो फ्री लीगल सर्विसेज ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टेट। 10th है स्पीडी ट्रायल। तो हुसैनरा खातून नंबर 1 वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में एक पिटीशन फॉर अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की रिट हुई थी, वॉज फाइल्ड बाय नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ठीक है, जो जेल में थे स्टेट ऑफ बिहार में, ठीक है, फॉर ईयर्स वेटिंग फॉर द ट्रायल, क्योंकि उनका ट्रायल ही नहीं हो रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो स्पीडी ट्रायल का राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है, और ये कहाँ पे जाता है, गारंटी करता है लाइफ को, गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंश्योर्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीडी ट्रायल इज़ द एसेंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। तो यही बात हुई थी इसमें कि स्पीडी ट्रायल होना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर स्पीडी ट्रायल इज़ द एसेंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। ये गारंटी करता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को। मंगल, अब नेक्स्ट केस है मंगल सिंह एंड अनदर वर्सेस किशन सिंह एंड अदर्स, 2009 का केस है, जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि एनी इनकोऑर्डिनेट डिले इन कंक्लूजन ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल, दिस अनडाउटेडली हैज़ हाईली deleterious effect on the society generally and particularly on the two sides of the case। अब बेसिकली यहाँ पे ये बोलोगे अगर बहुत ही ज़्यादा इनऑर्डिनेट डिले है तो वहाँ पे ये क्या क्या इफेक्ट करता है, एक हाईली डेलेटरियस इफेक्ट होता है टू द सोसाइटी एंड ऑब्वियसली वो दो पार्टीज जो इन्वॉल्व इन द केस, ठीक है, बट इट विल बी ग्रेव मिस्टेक टू अज्यूम दैट डिले इन ट्रायल डज नॉट कॉज एक्यूट सफरिंग एंड एंग्विश टू द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। अब ये जो डिले हो रहा है ना इन द ऑर्डर, ठीक है, वो एक ग्रेव मिस्टेक है, और इससे क्या होता है, हम ये नहीं वो कर सकते कि यहाँ पे एक्यूट बहुत ज़्यादा सफरिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंग्विश होता है टू दी विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। इन मेनी केसेस जो विक्टिम होता है ना वो इवन मोर सफ़र इवन मोर देन द एक्यूज्ड। विक्टिम जो होता है वो अक्यूज से भी ज़्यादा कई बार सफ़र करता है इन सब चीज़ों की वजह से कि डिले हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज देयरफॉर नो रीज़न टू गिव ऑल बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन ट्रायल टू द अक्यूज्ड एंड कम्प्लीटली डिनाई ऑल जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, कोई रीज़न नहीं है कि सारे बेनिफिट्स दे दो डिले के लिए, सारे बेनिफिट्स अक्यूज़ को मिल जाए, ठीक है, और कम्प्लीटली जो विक्टिम है उस ऑफ द ऑफेंस उसको डिनाई हो जाए जस्टिस। सेक्शन 309 ऑफ CRPC क्लॉज 1 जो है वो बताता है कि सबसेक्शन 1 इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग्स शैल बी हेल्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो होंगी, एंड इन पर्टिकुलर केस वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हैज़ वंस बिगन the same shall be continued from day to day until the witnesses in attend all the witnesses in attendance have been examined। अब जैसे ही विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन चालू हुआ ना उसके बाद वो डे बाय डे चलेंगे, ठीक है, डे टू डे चलेंगे अंटिल दी सारे विटनेसेस जो भी है वो एग्जामिन ना हो जाए, अनलेस द कोर्ट फाइंड्स द एडजर्नमेंट ऑफ द सेम बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज़ नेसेसरी फॉर द रीजंस टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सबका हो गया। अब इसके बाद है ना कोर्ट को क्या करना है, फाइन करना है, एडजर्न करना है द सेम बियॉन्ड द फॉलोइंग डे, बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, फिर रीजंस रिकॉर्ड करना है और एडजर्न करना है, ठीक है। सेक्शन फिर सॉरी पॉइंट 11 है राइट ऑफ द अक्यूज टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड टू सबमिट आर्ग्यूमेंट्स।
सेक्शन 314 ऑफ CRPC प्रोवाइड करता है कि हर पार्टी के पास जो भी प्रोसीडिंग में है उसके पास ओरल आर्ग्यूमेंट एंड उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, ओरल आर्ग्यूमेंट कर सकता है एंड सबमिट कर सकता है रिटन रिपोर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस केस। ठीक है, सेक्शन 315 बात करता है कि CRPC का कि प्रोवाइड दैट एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शेल बी competent witnesses for any defense and may give evidence and oath in dispose of the charges against him। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, ये पॉइंट राइट जो है ये बात करता है राइट ऑफ द एक्यूज टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड टू सबमिट आर्ग्यूमेंट। सेक्शन 314 बताता है कि हर पार्टी के पास राइट है कि वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है और सबमिट कर सकता है रिटन आर्ग्यूमेंट्स। ओरल आर्ग्यूमेंट्स और रिटन आर्ग्यूमेंट्स की बात है जो भी सपोर्ट करता है उसके केस को। सेक्शन 315 बताता है CRPC का कि जो भी पर्सन अक्यूज है ना फॉर द ऑफेंस, ठीक है, बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट, वो क्या कर सकता है, उसके वो कॉम्पिटेंट विटनेसेस को इन ऑफर हिज डिफेंस, ठीक है, या फिर विटनेस और एविडेंस को जो भी है ना वो उसके सपोर्ट में उनको ला सकता है और खुद भी ओथ या कि ऑन डिस्प्रूफ ऑफ द चार्जेस बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड ऑडी अल्टरम पार्टेम। तो फेयर ट्रायल का एक सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन यही है ऑडी अल्टरम पार्टेम कि accused person is given adequate opportunity to defend himself, but this opportunity will have no meaning if the accused person is not informed about the accusation against him। तो उसको बताओ भी कि वो किस लिए accused है और फिर उससे बोलो कि आप adequate opportunity है, अब आप अपने आप को डिफेंड करो। तो ये कोड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, therefore provides in section 228, 229 and 251 in plain words that when an accused person is brought before the court for trial, तो वहाँ पे particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him। तो जब भी उसको ट्रायल के लिए लाया जाएगा accused person को तो उसको बताया जाएगा कि किस ऑफेंस के लिए उसको एक्यूज़ किया गया है। ठीक है, वो सब उसे स्टेट किए जाएंगे सो दैट द accused कैन प्रिपेयर उसका डिफेंस for facing the trial। Section 313 of CRPC also provides that incriminating circumstances that are appearing against the accused shall be explained to the accused। किस वजह से, सेक्शन 313 बताता है CRPC को किस वजह से, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वो इनक्रिमिनेट हो रहा है। ठीक है, वो सब उसको बताए जाएंगे कि किन चीज़ों के अगेंस्ट उसके वो अपेयर हो रहा है और किस लिए उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे कि अब उसे इनक्रिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट 13, राइट ऑफ द अक्यूज टू बी ट्राइड इन हिज प्रेजेंस। ठीक है, अब ट्रायल जो होगा वो अक्यूज की प्रेजेंस में होगा। सेक्शन 273 ऑफ द CRPC प्रोवाइड करता है कि एक्सेप्ट इज अदरवाइज expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused। जो भी evidences लिए जाएंगे वो सब लिए जाएंगे ट्रायल में, जो भी proceedings होगी वो सब होंगी accused की presence में, और when his personal attendee is dispensed with in the presence of the pleader। ठीक है, उसके कोई पर्सनल अटेंडी होगा, ठीक है, उसको उसके साथ डिस्पेंस किए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, जो भी उसे प्लीड करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो लॉयर है ना। ठीक है, द पर्सनल प्रेजेंस of the accused throughout the trial would enable him to understand properly the prosecution of the case as it is unfolded in the court। अब कैसे कैसे कोर्ट खुल रहा है, कैसे कैसे पेजेस टर्न हो रहा है, तो वो सब वो खुद के ट्रायल को अगर खुद पर्सनल प्रेजेंस देगा तो वो समझ पाएगा। ठीक है, और उसके अलावा सेक्शन 273 में हमने पढ़ लिया कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, वहाँ पे जो भी एविडेंसेस होंगे ट्रायल्स में, जो कुछ भी होगा वो सब अक्यूज के सामने होगा या फिर उसका पर्सनल अटेंडी होगा, उसके सामने डिस्पेंस किया जाएगा और उसके प्रेजेंस में होगा, किसके, प्लीडर के प्रेजेंस में। सेक्शन 317 बताता है हाउएवर मेक्स एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल कि जहाँ पे कोर्ट के पास एम्पावर्ड है कि वो क्या कर सकता है, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडी ऑफ द अक्यूज पर्सन एट द ट्रायल। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्सनल अटेंडी की प्रेजेंस में भी डिस्पेंस कर सकता है कोर्ट। ठीक है, person at the trial of certain circumstances। सेक्शन 317 का सबसेक्शन 1 बताता है कि provides that at any stage of inquiry or trial if the court is satisfied that the personal attendee of the accused before it is not necessary, ठीक है, अगर necessary नहीं है in the interest of justice, तो वहाँ पे क्या होता है कि accused persistently disturbs the proceedings in court, और दैट, या फिर ऐसा हो रहा है कि accused जो person है वो persistently disturb कर रहा है proceedings of the court को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, जो अक्यूज पर्सन है उसको रिप्रेजेंट बाय द प्लीडर बोल सकते हो कि प्लीडर डिस्पेंस कर लेगा और है ना आपके अटेंडी की प्रेजेंस में ही प्रोसीड कर सकते हैं इंक्वायरी और ट्रायल को, आपकी एब्सेंस भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन हिज एब्सेंस एंड में सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट द पर्सन अटेंडी टू ऑफ सच अक्यूज। ठीक है, सिंपल बात है कि आपके लॉयर की मतलब प्लीडर के केस सामने हो सकती है, और जब आप पर्सिस्टेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट को और ले अगर वो नहीं तो आपके कोई पर्सनल अटेंडी के प्रेजेंस में हो सकती है। लास्टली कंक्लूजन, in the famous Best Bakeries case, His Lordship Arjit Pasayar, by quoting stanzas 14 and 18 of 8th chapter of Manu Samhita, observed that where in the presence of judges dharma
is overcome by adharm, and truth by unfounded falsehood. At that place, the judges, are destroyed by sin. In the adharm following the wrong decision of the court of law, one fourth each is attributed to the person committing the adharm, witness, the judges, and the ruler. The concept of fair trial entails familiar triangulation of interest of the accused, the victim, and the society, and it is the continued community that acts through the state of prosecuting agencies. Denial of a fair trial is as much injustice to the accused as to the victim and the society, and it amounts to the circumcision of human rights.